Good morning, students. Today we are going to study the second chapter of English language, the noun. Okay. Noun is the name of person, place or thing that we can hear, see, touch, smell, taste, think or feel about. Okay. For example, table, Mumbai, apple, car, these all are noun. Now, the kinds of noun. There are 5 kinds of noun here. Common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. Common noun denotes no one person or thing in particular, but it is common to any and every person or thing of the same kind. Means common noun same kind के बहुत सारे लोगों, पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताता है. लाइक स्कूल, country, man, teacher, river. When I said school, है ना, school means no, not only one school, but it means any of school, ना, Indian public school or Leonard school, Aloysius school, any of school. Okay, so here is not here is not saying about a particular school. Okay, school means any of school, that is common noun. Country, any of country, India, Malaysia, USA, France, any of country. Teacher, any of your teacher. River, any of the river, Ganga, Yamuna, Chenab, Ravi, Satluj, any of the river. Okay, so when we talk about the same kind of person, place and thing, this is called common noun. Now proper noun. Proper noun is when we talk about a particular person, a particular place, particular thing, that is called proper noun. जब हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेके बोलते हैं, जैसे महात्मा गांधी. When I say Mahatma Gandhi, then we mean the person Mahatma Gandhi only, not any other person. When I said Ganga, है ना, then I am talking about only the river Ganga, not about any other river. Got it? So this is proper noun, and proper noun is always started with capital alphabet. Okay. Now collective noun. Collective noun is the name of a number of person or thing taken together, है ना. मतलब collective noun का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा. इसका मतलब क्या है? When we talk about a group, जब हम पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हर्ड ऑफ काउ. हर्ड ऑफ काउ का मतलब क्या है? गायों का झुंड, है ना. क्लास, व्हेन आई सेड क्लास मीन्स क्लास कोई एक बच्चे से, किसी एक बच्चे से क्लास, किसी एक स्टूडेंट से क्लास नहीं बनती है. आपको भी पता है, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ क्लास 7, दिस इज़ क्लास 9. क्लास मीन्स द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, द प्लेस वेयर मैनी स्टूडेंट्स सिट टुगेदर, है ना. देन तो इसका मतलब क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन क्या है? हमें एक पूरे ग्रुप के बारे में बताता है. देन मटीरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा. मटीरियल नाउन जब हम किसी मैटर या सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? मटीरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. तो इसमें चेयर क्या है? चेयर कॉमन नाउन है, बट मेड ऑफ वुड बोला हमने, तो वुड क्या है? एक मटीरियल है वुड, है ना. वुड इज़ अ मटीरियल. ठीक है. इन द हिमालय एरिया देयर आर मैनी वैल्यूएबल वुड्स आर प्लूरल सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं. इसमें वुड्स क्या है? मटीरियल है. तो जब हम
किसी सब्सटेंस या मटेरियल के बारे में बात करते हैं, किसी सेंटेंस में मटेरियल के बारे में बोला जाता है, किसी सब्सटेंस के बारे में, किसी मैटर के बारे में बोला जाता है, तो दैट इज़ मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको यूजुअली किसी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को कंसीडर करने के लिए बात किया जाता है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी फेल्ट और थॉट, while other four nouns can be seen or heard or touched। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम केवल फील कर सकते हैं या फिर थॉट, उसको सोच सकते हैं, अपने विचारों में ला सकते हैं, बट वी कांट टच इट, वी कांट सी इट, वी कांट हर्ड इट। लाइक क्लेवरनेस, डेथ, पावर्टी, दीज ऑल आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। दैट वी कांट सी पावर्टी, है ना, वी कांट टच पावर्टी, वी कांट hear poverty, we can't see cleverness, so these all are abstract noun, okay। So these were the kind of noun. Now next is here you can see the formation of abstract noun. Common noun to abstract noun, adjective to abstract noun, verbs to adjective abstract noun, these all are formation of conversion of abstract noun, okay। So you have to learn it better, okay। Now next is the noun, its number. There are two numbers in English, singular number and plural number, है ना। A noun that denotes one person, one thing or one place। जो नाउन हमें किसी एक पर्सन, एक प्लेस या एक थिंग के बारे में बताता है, it is called singular noun। pen, river, country। When a noun that denotes more than one person, place or thing, this is called plural number, like pens, rivers, countries, okay। So these are number singular and plural। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन, है ना। इसमें भी अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं, किसके आगे किस नाउन के आगे एस लगाने से वो प्लूरल बनता है, किसके आगे ई एस लगाना होता है हमें, किस में आई ई एस लगाना होता है, किस में ओनली एस पुट करना होता है, किस में वी ई एस हमें पुट करना है, किस में ई एन पुट करना है, किस में हमें ओ ई एस, ओ के साथ ई एस पुट करना है ना। दीज ऑल आर कंडीशंस। जैसे इसमें दिया हुआ है 8 नंबर पे जो दिया है, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, ब्रदर ब्रेदरिन, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ, फादर इन लॉज नहीं फादर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ डॉटर्स इन लॉ, ठीक है। बी ए बी एज, एम एज, ओके। सो दीज आर द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नाउन एंड इट्स यूजेस। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो स्पेशली एनिमल, ग्रेन और मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो सेम काइंड के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, जैसे शीप, डियर, फिश, है ना। देयर आर सम नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट यूज्ड इन प्लूरल सेंस। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका यूज़ प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, जैसे कैटल। कैटल इज़ ऑलरेडी अ प्लूरल फॉर्म, है ना, हम पीछे पढ़ चुके हैं। पीपल इज़ ऑलरेडी अ प्लूरल फॉर्म। तो इसी तरीके से आगे भी हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट द नाउन इट्स जेंडर। जेंडर हमें बताता है कि कोई भी पर्सन या थिंग वो मेल है, फीमेल है या फिर एनी अदर जेंडर है, ओके। हियर इज व्हाट इज नेचर इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेक्स, इन ग्रामर इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ जेंडर। मतलब कोई भी पर्सन या प्लेस, पर्सन या थिंग वो
बॉय है या गर्ल है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, जो भी वर्ड हमें ये बताता है ग्रामर में, वो क्या कहलाता है? जेंडर। अदर वर्ड्स में हम कहें तो जेंडर हमें ये बताता है कि जो नाउन है वो मेल सेक्स से बिलोंग करता है या फीमेल सेक्स से बिलोंग करता है, या फिर दोनों से ही नहीं करता, या फिर दोनों में ही कॉमन है। ओके, तो 4 जेंडर है इंग्लिश लैंग्वेज में। कौन कौन से? पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर अ नाउन दैट डिनोट अ मेल क्रीचर, है ना, जो हमें पुरुष जाति के बारे में बताता है, मेल क्रीचर के बारे में बताता है, जैसे बॉय, डॉग, हॉर्स। ठीक है, ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। देन सेकेंड इज फेमिनिन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रीचर। ऐसा नाउन, वो नाउन जो हमें फीमेल क्रीचर के बारे में बताता है, स्त्री जाति के बारे में बताता है, लाइक गर्ल, बिच, मेयर, वीमेन, लाइनेस, टाइग्रेस। देन कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स बोथ द सेक्सेस इज द कॉमन जेंडर। जो नाउन हमें दोनों जेंडर के बारे में बताता है, लाइक बेबी। अब बेबी में बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। पेरेंट्स, पेरेंट्स में मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं, मदर और फादर दोनों हो सकते हैं। कज़िन में कज़िन सिस्टर भी होती है, कज़िन ब्रदर भी हो सकता है। सो दीज आर कॉमन जेंडर। ओके, देन न्यूटर जेंडर, है ना। न्यूटर जेंडर का यूज़ यूजुअली हम लाइफलेस थिंग्स के लिए करते हैं। ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं होती, जीवन नहीं होता, ऐसी थिंग्स के लिए हम न्यूटर जेंडर का यूज़ करते हैं, लाइक बुक, टेबल, नाइफ, रिवर। ये सब क्या है? लाइफलेस थिंग्स हैं, तो इनके लिए ये क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर। ठीक है। और यूजुअली जो न्यूटर जेंडर है वो मटीरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर कलेक्टिव नाउन के लिए भी यूज़ किया जाता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो हियर आर the formation of gender. See, by using an entirely different word, cock, hen, boy, girl, author, authoress, actor, actress, emperor, empress, these are all the gender. Okay, then next is the noun, its cases. On the page, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सेंटेंस, आपको पहले ही मैंने जब सेंटेंस पढ़ाया था तो क्या बताया था कि सेंटेंस इज़ मेड ऑफ 2 कंपोनेंट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। जो प्रेडिकेट होता है उसमें वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट होता है साथ में, है ना। तो इसमें हम नाउन के केसेस पढ़ेंगे। पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है बेटा? कोई भी नाउन, है ना, जब उसमें किसी सब्जेक्ट का वर्ब ये किसी एक के बारे में बताता है, सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस एनी नाउन और प्रोनाउन दैट स्टैंड्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी सेंटेंस में जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब के सेंटेंस के रूप में यूज़ किया जाता है तब वो क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस। पजेसिव केस क्या होता है? एनी नाउन दैट डिनोट्स द पजेसर और ऑनर। जब कोई नाउन जब कोई नाउन जो है किसी भी थिंग पर किसी का पजेशन बताता है, अधिकार बताता है ना, तो वो क्या कहलाता है? पजेसिव केस। ठीक है, जैसे मनी गिव्स अ रोज टू हर फ्रेंड, तो इसमें मनी क्या है? मनी इज द नॉमिनेटिव केस एंड गिव्स अ रोज टू हर फ्रेंड, रोज टू हर फ्रेंड क्या है? पजेसिव केस, है ना। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, हेंस दे आर इन ऑब्जेक्टिव केस एंड द वर्ड हर डिनोट्स पोजीशन। इसमें जो वर्ड है हर, HER, हर,
ये हर किसके लिए बोला गया है? मनी के लिए, है ना। तो इसमें पोजेशन बताया जा रहा है, इट डिनोट्स पोजेशन, सो इट इज़ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का जो यूज़ है वो पोजेशन बताने के लिए किया जाता है। आपने अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ पढ़ा होगा पहले भी, इसमें अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। पॉजेसिव केस फॉर्म किया जाता है अपोस्ट्रोफ एस लगा के जब सिंगुलर नाउन में जब यूज़ किया जाता है अपोस्ट्रोफ एस को, तो कैसे किया जाता है? जैसे फार्मर्स काउ, किसान की गाय, राहुल्स पेन, राहुल का पेन, अर्थ सैटेलाइट, अर्थ का सैटेलाइट। दीज आर, इसमें हम सिंपली अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करके पोजेशन बताते हैं। किसका पेन है? राहुल का, तो राहुल के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। सेकेंड केस इज व्हेन फॉर्म्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफ एस टू अ प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन जो होता है उसमें ऑलरेडी लास्ट में एस लगा होता है ना। तो उसमें हम कैसे लिखते हैं उसको? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गर्ल्स के बाद अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। गर्ल्स इज़ अ प्लूरल नाउन, है ना। तो प्लूरल नाउन को पॉजेसिव केस में फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? जो एस है प्लूरल का, उसके बाद हम अपोस्ट्रोफ लगाते हैं। बुक्स के बाद हम अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, हॉर्सेस के बाद हम अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज इट्स यूज इज ऑप्शनल विथ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन द साउंड ऑफ एस, एस एच, है ना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका एंड कैसे होता है? एस से या एस एच से एंड होता है, तो उसमें कैसे यूज़ किया जाता है? इसमें भी हम एस के बाद अपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं या एस एच के बाद हम अपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्लूरल नाउन में हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जब बहुत सारे नाउन एक साथ लिए जाते हैं, है ना, पॉजेसिव केस उसमें फॉर्म करना होता है, तो हम अपोस्ट्रोफ एस लास्ट वर्ड में लगाते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, लॉज कार, ब्रदर इन लॉ की कार, तो इसमें हम अपोस्ट्रोफ कहाँ लगाएंगे? लॉ के, लॉज के बाद। LAW लॉ दिया है, ब्रदर, ब्रदर के बाद ना ही इनके बाद, हम किसके बाद अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे? लॉ के बाद, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो इसमें कंडीशन बताई गई है, इसमें क्या बताया है? मोर देन वन नाउन, जब एक साथ बहुत सारे नाउन आते हैं और उसमें पोजीशन बताना होता है, तो वहाँ पर नाउन जो लास्ट नाउन है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। जैसे नानी, नैनी, राहुल एंड पंकज हाउस, इसमें क्या है? तीनों का घर बताया गया है, नैनी, राहुल एंड पंकज, इन तीनों का घर है, ये इसमें बताना चाह रहा है। तो इसमें एस कहाँ लगाएंगे? जो लास्ट नाउन है दैट इज़ पंकज, उसके बाद हम अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा नैनी, राहुल और पंकज का घर। सीमा मनी एंड नीतूज स्कूल, सीमा मनी और नीतू का स्कूल, ओके। अपोस्ट्रोफ का यूज़ हम कुछ हिडन पार्ट को भी मार्क करने के लिए लगाते हैं। जैसे आई एम इसमें लिखा हुआ है, आई के बाद अपोस्ट्रोफ फिर एम लिख दिया है, आई एम। दे विल, यू शैल या यू विल, ओके। सो इस तरह से हम अपोस्ट्रोफ का इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ इसमें जो प्लूरल है उसको एब्रीविएटेड फॉर्म्स में शो करने के लिए लेटर्स में हम जो स्पेशल कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लाइक माइंड योर पीज एंड क्विज, यू हैव बीन टेलिंग सो मैनी सॉरीज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन फर्स्ट एंड सेकेंड नाउन शो पोजीशन फॉर थर्ड नाउन इन अ सेंटेंस, अपोस्ट्रोफ इज यूज्ड एज फॉलोज। जब दो नाउन होते हैं और पहला और दूसरा नाउन दोनों का पोजीशन दिखाना होता है एक ही चीज़ पर या फिर अलग अलग चीज़ों पर भी, तो भी हम अपोस्ट्रोफ का यूज़ कैसे करेंगे? देखिए, अमल एंड अनिल्स हाउस, मतलब अमल और अनिल का एक ही घर है, दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो हम जो लास्ट नाउन है उसमें हम अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, ऊपर आपने पढ़ा है अभी। और अगर अमल और अनिल का अलग अलग घर है तो कैसे लिखेंगे? अजयज़ अमल्स एंड अनिल्स हाउस, या नीचे दिया है जैसे अजयज़ एंड पूनम्स हाउस, ये सेपरेट घर हैं दोनों। तो ये कंडीशन इसमें बताई गई है, ठीक है।
नाउ ये बाकी के जो केसेस हैं ये भी इसी तरीके से हैं, ये आप पढ़ लेंगे. नाउ नेक्स्ट इज केस इन अपोजिशन, है ना. जब एक सेंटेंस में दो नाउन होते हैं और वो दोनों नाउन एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं, है ना, तो वहाँ जहाँ पर जो फर्स्ट नाउन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड नाउन होता है, तो दैट इज़ अपोजिशन का केस होता है इसमें. कैसे? अर्जुन माय फ्रेंड हैज़ गॉन. इसमें अर्जुन क्या है? नाउन है. माय फ्रेंड हैज़ गॉन, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? अर्जुन के बारे में. अर्जुन कौन है? माय फ्रेंड, मेरा दोस्त है. इसमें अर्जुन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, जो आगे का ये नाउन है. फ्रेंड जो नाउन लगाया है ये भी किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फर्स्ट नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. रावण द किंग ऑफ लंका वॉज किल्ड, ये जो पूरा सेंटेंस है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रावण को, जो फर्स्ट नाउन है. शेक्सपियर अ ग्रेट पोएट हैज़ रिटन सेवरल प्लेस, ये जो पूरा सेंटेंस है वो शेक्सपियर को डिस्क्राइब कर रहा है, द फर्स्ट नाउन. गॉट इट? सो इस तरीके से हम नाउन, और इसमें नाउन, नंबर, जेंडर और अपोस्ट्रोफ के बारे में हमने पढ़ा है. ठीक है बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल read the chapter, whole chapter nicely, and listen the explanation very carefully, and wherever you have any doubt, please underline in your book, click the image and send to me in my personal number, and you can ask your question whatever you want, wherever you have any doubt. Okay, now I am sending you the exercise of this chapter. Please note it in your book. Okay, and you don't need to write the exercise in your notebook. कॉपी में आपको इसकी एक्सरसाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है. If you have book, you can write in your book only. You don't need to write in your notebook. Okay, goodbye.